So if it implies A equals to C and B is equal to D, right? This was an ordered pair, whereas set is not an ordered pair. This is an ordered pair. That is, we can't change the order. Whereas in the case of set, when you write a set, two elements inside it, it won't be ordered pair because in a set, order is immaterial. 1 comma 2 could be 2 comma 1 also. Unordered pair. It's the unordered pair. After finishing with function, I'll start with trigo. I think trigo is a common topic for everyone, ना? तुम्हारा ट्रिगो आ रहा है? क्या है ट्रिगो शुरू होगा मैथ्स में? स्कूल लाइक ट्रिगो विल बी देयर ना? हॉलीडेज. ट्रिगो. ओके. ट्रिगो set relation function. Fine. If you have two sets A and B, suppose cardinal number of A is n and the cardinal number of set B is m, then A cross B is always set containing ordered pairs x comma y. When you find A cross B, it will be always ordered pair A comma x comma y such that x always belongs to the first set and y belongs to the second set. That is basically the Cartesian product of two sets. Mm. For example, if I take set A, let set A be 1, 2, 3. Set B is say P comma Q. Then what is A cross B? It will be ordered pairs containing, yes, the first element will be from the first set and the second will be from the second set. The first element will come from the first set, that is 1 P, 1 Q, 2 P, 2 Q, 3 P, and 3 Q. And you can't interchange the order also. That is the meaning of Cartesian product of two sets. वो तो बहुत इजी है. देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस व्हिच आर वर्ड प्रॉब्लम्स. केमिकल ए मिक्स विद केमिकल बी, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, दोस टू क्वेश्चन आई विल डू विद यू सेपरेटली इफ यू वांट. हाँ, वही दो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी में जो एंड में है ना, दो. यस. नहीं नहीं, पावर सेट में तो यू हैव सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. पावर सेट के अंदर सेट्स थे, ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है. इफ यू रिमेंबर, पावर सेट के अंदर यू हैड सेट्स. Power set of A would be having 8 sets. So that's totally different. So Cartesian product of two sets will always contain ordered pairs such that उस ordered pair का पहला element set A को belong करेगा and the second element will belong to the second set. That is the meaning of this. And how many ordered pair will be there? See, what is the cardinal number of A cross B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, which is nothing but 3 into 2, which is also cardinal number of set A into cardinal number of set B. So that is A cross B. A cross B ka cardinal number would be cardinal number of A into cardinal number of B.
सपोज सेट ए में 10 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर वुड बी द 30? सेट ए में 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, इसमें दो हैं, 2 × 3 6 आ गया। एंड किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दिस ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर डबलेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर डबलेट। वी कैन मल्टीप्लाई थ्री सेट्स ऑल्सो, तो उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, दिल बी कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। The Cartesian product of two sets will be containing order doublets. And how do you find them? One this, two this, two this, and like that. Can you find B cross A in the same thing? B cross A find karo and tell me how many ordered pairs are common in A cross B and B cross A. How many ordered pairs are common in A cross B and B cross A? देखो जरा, बी क्रॉस में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट विल बी फ्रॉम, द फर्स्ट एलिमेंट विल कम फ्रॉम बी। ठीक है, कितने बन रहे हैं वो देखो। हाँ, गुड। दिव्या, कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आने हैं? 6। कॉमन तो कोई नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रही, तुमने आज कुछ खाया भी या नहीं? डाइटिंग में चल रही हो? कॉमन तो कोई नहीं आ रहा। हाँ, कॉमन पेयर्स कोई नहीं आ रहे, चलो 6 पेयर्स आ ठीक है, बात मान ली तुम्हारी। रहे। More questions for you. Say A is 1 2 3, B is x comma y. First question is find A cross B. Second question is find B cross A. Third question is find A cross A. Fourth question is find B cross B. And fifth question is find A cross B cross B. सब लोग एक एक आंसर करेंगे बोर्ड पे, ठीक है? स्टार्ट विद यू। ठीक है, हो गया। सेकंड कौन कर रहा है? सेकंड में तुम कर दो। तुम्हें कौन सा करना है लास्ट? हम्म। हाँ, सेट्स का करेंगे ना अभी। दिल बी टेस्ट ऑन सेट्स वेरी सून, एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? दिल बी 25 क्वेश्चन, 1 आवर। नेक्स्ट करो। एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, कार्डिनल नंबर इन ईच केस, ठीक है? सभी का वो भी लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट करो। हमारी क्लास होती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे सैटरडे। सो व्हेन यू वांट टू राइट द टेस्ट, ट्यूसडे बिफोर द क्लास। हाँ मतलब एक डेट फिक्स कर लेंगे ना, डे, और सैटरडेज। ट्यूसडे। हाँ। कमिंग ट्यूसडे रख लेते हैं सेट्स का टेस्ट, ठीक है? क्लास के पहले 1 आवर।
25 questions and +4 -1. ठीक है। हम्म। अरे हो जाएगा, पहले तुमने बी क्रॉस बी निकाला हुआ है ना। तो अब क्या करोगे, ए के साथ ट्रिपलेट करोगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुमने ए ले लिया, ए इज 1 2 3। सो इधर यू, ऐसा कर लो, पहले ए लिखो 1 2 3, है ना। एंड देन बी क्रॉस बी क्या है तुम्हारा, दिस एंटायर थिंग एज इट इज। सो वन विद दिस, जो वन विद दिस लिखो, दिस एंटायर थिंग। So this would be 1 x x, with 2 with this, 3 with this, with 1 with this. So this will be entire triplet हो जाएगा। क्रॉस बी इनटू मत बोलो, नाराज हो जाएगा वो। क्रॉस, तो इसे इल बी ऑर्डर ट्रिपलेट। A is 1, B is 1 x x, so 1 comma x comma x, then 1 with x y, 1 x y, with 1 y x, with 1 y y. Yeah, it'll be 3 into 4, huh? So this is 1 with this 1 x x। नहीं, एक मिनट, इसको शिफ्ट करते हैं, रुको, ऊपर शिफ्ट कर दो थोड़ा सा। नाउ यू राइट, ब्लैक से लिख लो। कितने आ रहे हैं? 20, नो इल बी 12। काव्य के लिए एक बोनस है, शिल राइट ए क्रॉस ए ऑल्सो। हाँ वो भी लिखो, लास्ट वाला, इसको शिफ्ट कर देते हैं। कितने आएंगे उसमें? जस्ट गुड एक्सरसाइज, चलो करो जल्दी। ए क्रॉस ए करो। In case you want to study something extra, so you let me know in advance. Tuesdays I can come at 4 o'clock. ठीक है, all of you, yeah. If you want to read something extra, कुछ extra करना है मैथ्स में, so दिव्या ए क्रॉस किया। इतना बड़ा बड़ा लिखती हो ना तुम, पूरा बोर्ड भर जाएगा। कोई बात नहीं। Like there could be case situation when you have some other topic coming in examination I have not done, so you can एरो डायग्राम, वो भी रिलेशन में आएगा। क्लोज इंटरवल, इंटरवल्स की बात कर रही हो ना, वो भी रिलेशन में आ जाएगा, कर लेंगे, फंक्शन में होगा रादर। दैट इज एन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। लास्ट वाला लिखो, ए क्रॉस ए ये वाला, ए क्रॉस है। मैं कलर लगाया हुआ अपने हाथ पे, मार्कर। इसमें क्या करोगे, ए क्रॉस है ना ऑलरेडी तुम्हारे पास, हाँ। हाँ राइट राइट, कर लो। 27 हो गए ना। दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, डन हो गया।
तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है अभी? अच्छा। और क्या हो चुका है? सीक्वेंस करा दिया है? सीक्वेंस में कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, अलग से। ट्यूजडेज, whenever you want to ask. So there'll be 27 ordered pair triplets. These are ordered triplets because three elements are there. So in general, if you have n a cross b cross c cross d and so on, it will be always n of a into n of b into n of c and so on. ये हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे ए, ये सारा हो गया ना, like a cross a को can you represent in the lattice, that is coordinate system? Divsha, can we represent a cross a in the Cartesian system? Yes. Do that. Represent a cross a in the Cartesian system. A cross a को represent करो coordinate system. It's also called lattice. जैसे कि यू हैव ए क्रॉस ए में 1,1, तो 1,1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा। So you can mark it over here 1,1. So that way you can mark all the 3D में हो जाएगा वो, थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट वो आएगा नहीं। This is called three-dimensional right-handed system. That is, if you curl fingers of right hand from X to Y axis, thumb will give you Z axis. This is called three-dimensional right-handed system. जिससे कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, चार पार्ट में पूरा प्लेन डिवाइड होता है। इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स फोर। So similarly, in three-dimensional coordinate system, the entire three-dimensional space is divided into 8 parts. उसको बोलते हैं octants. ये first octant, ये second, फिर third, fourth, 6, 7, 8, like that. 4 octant ऊपर होते हैं, 4 octant नीचे होते हैं। तो you can represent it, हो जाएगा ना ये तो। अब आगे बढ़े। दिवशा हो गया। Suppose A is 1, 2, 3 and B is 2, 4. Question is find A cross B, B cross A, and write the ordered pair which is in common. Find A cross B and B cross A and the ordered pair which is common in A cross B and B cross A. First with first, second with second, ठीक है? June 21 to 27 June no classes, but पता है ना वो 27. So if you want to plan something, how many ordered pairs are in common वो भी लिखना है। कौन सा ordered pair है common है वो भी बताना है। हम्म। दिवशा कौन सा आ रहा है कॉमन? 2,2। बस एक ही? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। बाकी लोगों को तो काफी आ रहे हैं। वही हो रहा है? अच्छा, 1 मिनट।
दो, बाकी लोगों को दो ही आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? एक 4 आ रहे हैं। ये लोग मानते ही नहीं है। 2,2 तो आ ही रहा है, सबको मालूम है, ठीक है। 3,3 भी आएगा, है ना। फिर 2,3 भी आएगा। फिर 3,2 थ्री भी है। कॉमा टू भी आएगा। और 3,2 आएगा, है ना। चार आ गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच you don't have to write and find common element, but just by looking at the two sets I've given to you, you need to find how many ordered pairs could be common in A cross B and B cross A. But without writing it, just by having a look at the first part of the question, second part of the question, and the figure out. Think loudly. 12. Write and do it. 5. Mine. दिवसा कितना होने चाहिए? इस 9। देखो, when there was no element common in two sets, right? No element common, then the number of ordered pair common was also 0. When there was one element common in the two sets, number of ordered pair common was 1 square. When there were two elements common in the two sets, then the number of ordered pair common were 4. This time you have three elements in common, so the number of element ordered pair common would be 9. I So now you, can't see the board. अच्छा, कुछ शिफ्ट हो गया? हाँ. ओह। तो अब वी कैन मेक ए रूल, काइंड ऑफ थिंग। रूल क्या हो गया? दैट इज, इफ यू लिखो, स्टेटमेंट लिखो एक। नाउ कैन यू सी, दिव्या? Yeah, thank you. लिखो, इफ टू सेट्स ए एंड बी, if two sets A and B have, if two sets A and B have m elements in common, then number of ordered pairs, common in A cross B and B cross A. Number of ordered pairs common in A cross B and B cross A will be m square, right? Order triplet, we need to solve it. I mean, sir, I don't think we need to figure out क्या होगा इसका. But that's not part of our syllabus, so we don't do that. अब ये तुम याद कर लो. अब आगे बढ़ते हैं. So if I have some set, say 1, 2, I find A cross A. What will be the ordered pair? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, right? So what is the cardinal number of A cross A? It is 4. Okay? If I ask you how many subsets of A cross A are there? Number of subset of A cross A. 2 to the power 4. Yes. The number of subsets of A cross A will be 2 raised to power n, which is 4. Because this is one element, second element, third element, 4 elements are there. So if you have set n elements, the number of subsets are 2 raised to power n. सबसेट वाली क्लास में मिस की थी क्या? जैसे सेट 1, 2 है, तो 5 इसका सबसेट है. सेट कंटेनिंग 1 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए. सेट कंटेनिंग 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए. सेट कंटेनिंग 1, 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए. सबसेट का मतलब है, हाँ तो वही तो है ये. देखो, पहला सबसेट बनाते हैं 5. इट इज कॉल्ड वॉइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट.
हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है. नेक्स्ट कुड बी कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ये भी सबसेट हो गया. अनदर कुड बी 1, 1, 1, 2, ये भी सबसेट हो गया. अनदर कुड बी 1, 1, 1, 2, 2, 1. So that way you can have 16 subsets. 16 सबसेट बनेंगे इसके. 2 raised to power n, so 2 raised to power 4. Because there you treated one as an element. यहाँ पे पूरा ordered pair एक element माना जाएगा. The entire, so you can have 4 subsets containing exactly one element. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. And then there'll be those subsets containing 1, 1, 2, exactly 2 ordered pairs. Then exactly 3 ordered pairs. Then exactly, एक बार लिख लो मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूजन है ना. राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और अद्विका बोर्ड पे लिखेगी तभी समझ में आएगा. आ जाओ, सारे सबसेट लिख दो. ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए के सबसेट बनाओ. एलिमेंट की जगह ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं. एग्जैक्टली वन वाले पहले नल सेट मैंने लिख दिया ऑलरेडी. फिर एक एग्जैक्टली वन ऑर्डर्ड पेयर वाले, एग्जैक्टली टू ऑर्डर्ड पेयर वाले, एग्जैक्टली थ्री ऑर्डर्ड पेयर वाले, और फिर द सेट इटसेल्फ. 16 बनेंगे, कर लो. राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. एग्जैक्टली वन वाले लिखो पहले सारे. दिल बी 4 ऑफ देम. लिख लो. ये मैथ्स का ही है ना हमारा. कितने पेजेस फिल हो गए? हाँ, मैथ्स का अलग से बनना चाहिए, ठीक है. मैथ्स इज द वन विच विल गेट यू एसपी दिल्ली. एग्जैक्टली टू वाले कितने बनेंगे? 6 बनेंगे. सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 4, 6 कॉम्बिनेशंस. 1, 1, 1 फिक्स किया, उसके साथ 3 आ गए. फिर 1, 2 फिक्स किया, उसके बाद 2 आ गए. फिर 2, 1 फिक्स किया, उसके बाद 1 आ गया, लाइक दैट. ठीक है. 1, 1 फिक्स किया, 2, 2 आ गया उसके साथ. 2, 2. नाउ यू फिक्स 1, 2 के साथ कर लो. 1, 2 के साथ 2, 1 आएगा. 1, 2 के साथ 2, 2 आएगा. 2, 2. पीछे वाला नहीं लेना, आगे वाला लेना है. देखो, व्हेन यू फिक्स 1, 1 ना, 1, 1 के साथ ये, 1, 1 के साथ ये, 1, ये हो गया. फिर 1, 2 के साथ ये, 1, 2 के साथ ये. पीछे वाला तो ऑलरेडी आ चुका है ना. और ऑर्डर तो मटेरियल है ना. इफ आई वांट टू राइट 1, 2 विद 1, 1, वो तो ऑलरेडी आ चुका है. तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट. नेक्स्ट वाला लिखो. और कौन लिखेगा? अच्छी है ना, एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारी. तुम लोग एक्सरसाइज करते नहीं कुछ, फिंगर्स फोन पे चलती हैं बस. सारे लिखो. अब कौन सा हो गया? 1, 2, 2, 1 के साथ आ गया ना. 1, 2 विद 2, 2. नहीं, वो तो तुमने पहले लिख लिया था. 1, 1 तो हो चुका था. 1, 2 विद, हाँ नहीं हुआ. 1, 2 विद 2, 2 नहीं हुआ. राइट. अब 1, 2 को छोड़ के नेक्स्ट कौन सा है? 2, 1. 2, 1 के साथ 2, 2 आ गया. तो देखो, हो गया ना 6 ये. अब 3 वाले कितने बनेंगे? 3 वाले बनेंगे 4 itself, द सेट itself आ ही जाएगा एंड में. 1, 1, 1, 2 को फिक्स कर दो. 1, 1, 1, 2 फिक्स कर दो. 2, 1 आ गया. फिर 1, 1, 1, 2, 2, 2 फिक्स कर दो. 1, 2, 2, 2. ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है. देन 2, 2 ऑल्सो लास्ट. ये आ गया. विद विद लास्ट 3 ले लो. 1, 2, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2, 1, 2, 2.
और फिर एक और बचेगा, कौन सा बचा? नहीं, चार में तीन वाले चार आएंगे, दो वाले छह बनेंगे। देखो, एक, वन वन, टू टू, दिस एंड दिस। ना कहाँ लिखा है? वन वन की बात करो, वन वन, वन टू टू, वन टू टू। ये आ गया, ठीक है। नाउ द सेट इटसेल्फ, वो भी सबसेट। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, एंड फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो किसी भी सेट के दो तो सबसेट होंगे ही, इटसेल्फ एंड द फाइव। तो 16 सबसेट हो गए। अब सबसेट तुम्हें समझ में आ गया? रिवीजन करना पड़ेगा साथ साथ। हॉलीडे मूड में तुम लोग आ चुके हो, 90s, 95, 98 है तुम्हारे परसेंटेज आ गई हैं। तुम्हें मालूम नहीं है जो 99 होता है ना, 11th में आके वो 66 बन जाता है। बहुत जरूरी है पढ़ाई करना। इल बिकम 66, उससे भी नीचे आ सकता है फर्स्ट टर्म में। ऑल राइट, अब each subset of A cross A will give you a relation from set A to set B. What is a relation? A relation is defined from set A to set B is always a subset of the Cartesian product A cross B. लिखो, लिखो। हाँ, बोल रहा हूँ ना मैं, लिखो। A relation, a relation defined, a relation defined from set A to set B, a relation defined from set A to set B is a subset of is a subset of Cartesian product, is subset of Cartesian product A cross B. तो A क्रॉस B के जितने सबसेट बनेंगे, ईच सबसेट वुड बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। जैसे यहाँ पे हमने A क्रॉस A फाइंड किया, तो रिलेशन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ कितनी बनेगी? नंबर ऑफ रिलेशंस 16 रिलेशंस हैं। जैसे कि ये वॉइड रिलेशन है, पहला वाला मैं रिलेशन R1 लिख देता हूँ। ये क्या कहलाएगा? वॉइड, एम्प्टी और नल रिलेशन। अनदर रिलेशन आई राइट, जैसे तुमने ये लिखा 1,1, दिस इज अ रिलेशन। इस रिलेशन में वन इज रिलेटेड विद वन। येट अनदर रिलेशन कुड बी दिस, ये वाला भी हो सकता है, ये भी एक रिलेशन है। लेट मी कॉल इट R2। अंडर दिस रिलेशन 1,1 से रिलेटेड है और 2,1 से रिलेटेड है। So 1 is related with 1 and 2 is related with 1. This could be also a relation. Let me call it R16. The set itself A cross B is called universal relation. जो पूरा का पूरा A cross B होगा, that will be the universal relation. And बाकी तो मैंने बता दिया, this is null, void और empty relation. So now you know that relation is a subset of A cross B. तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे, हर सबसेट क्या होगा? एक रिलेशन होगा। इट कुड बी मैथमेटिकल रिलेशन, नॉन मैथमेटिकल रिलेशन, बट इट बी ए रिलेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। दिव्या, समझ में आया? Yes. रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? सपोज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एन है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज एम। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? 2 to the power mn, बरोबर, ठीक है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी ए से बी या बी से ए में? 2 to the power mn. परफेक्ट। समझ में आ गई बात? क्यों? बताओ क्या कंफ्यूजन है? जो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे, सबसेट, अभी तुमने तो लिखा था सारे सबसेट्स। सबसेट इज टोटली डिफरेंट थिंग देन रिलेशन।
यहाँ पे क्या था, सबसे पहले चीज समझो सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट का सबसेट मैंने लिख के बताया था ना यहाँ पे, जैसे 1 2 3 कोई सेट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, वो सारे सेट जो कि इसमें कंटेंड हैं। जैसे सेट बी है, उसका एलिमेंट इसमें कंटेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, बी ए का सबसेट है। सेट सी है, 1 3, ये इसमें कंटेंट है, सी ए का सबसेट है। सेट डी, से 2 4, 2 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बिकॉज 4 इज देयर इन डी, बट इट्स नॉट इट्स ऑर्डर पेयर आ गया बस, इतना डिफरेंस है। सेट में यू हैव एलिमेंट्स, whereas in the relation you have ordered pairs। तो हर ऑर्डर पे एक एलिमेंट है। जैसे कि सेट ए में एम, एन एलिमेंट्स है, एम में एन, बी में एम थे, तो ए क्रॉस बी में कितने आए थे, ए क्रॉस बी में आए थे, सी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया था, एम इंटू एन। तो इसके इतने एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 एम एन। एंड हर सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए रिलेशन। अब रिलेशन को हम किस मेनी वेज से वी कैन रिप्रेजेंट, लाइक सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें एक रिलेशन लिख के बताता हूँ। सम रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, एक्स कमा वाई such that x is equal to 2y minus 1, x y belongs to नेचुरल नंबर सेट a ले लेता हूं मैं, एंड x is equal to 2y minus 1। ये कोई रिलेशन है, दिस इज when you write some set in the characterizing way by writing some definition, it's called set builder form। तो ये set builder form of relation है। और यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है हमें, मान लो 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स। अब इसका मतलब समझो क्या हो रहा है। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। व्हेन इट से डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है वो। दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए अगर तुम फाइंड करोगे, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 100। कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर 100 सबसेट बनेंगे। तो हर वो जो सबसेट बनेगा 2 रेज टू पावर 100 विल बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। लेकिन हमें वो सारे रिलेशन नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए उनमें से, उनमें से वो रिलेशन जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ये जो हमें कंडीशन दे रखा है ना, ये सेटिस्फाई होना मांगता है। जैसे मैंने सपोज, आई कैन टेक एक्स को 1 से 10 तक, आई कैन टेक वाई को 1 से 10 तक। दोनों का रिस्ट्रिक्शन है, बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब मैं एक्स को 1 लूंगा, तो वाई कितना आएगा, डालो इसमें 1। व्हेन आई टेक एक्स इज इक्वल टू 2, वाई कितना आएगा, 2। बट दिस इज द फाउल, 3/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में क्या है, 1 2 3 2 10। ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को यूज करके तुम्हें एक्स वाई निकालना है, वो एक्स वाई सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। हाँ, वो एक ही बात है। यस, यस, हाँ। तो दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एंड दे शुड बी फ्रॉम द सेट ए। करो, इसी से करो, सारा डालो वैल्यूज, इसकी सारी वैल्यूज डालो, ऐसा कर लो। y निकाल लो यहाँ से, 2y कितना हो गया, तो y हो गया x+1/2। फाइंड ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच वुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। करो। 10 एलिमेंट हैं, 1 to 10। 5 ordered pairs आ रहे। हमें सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और x की वैल्यू y की वैल्यू 1 से 10 तक है। 100 तुम घर पे लिख लेना, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, क्यों नंदिनी, घर पे कर लेना 100 वाला। क्या आ रहा है दिवशा, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। 1,1 3, हम्म,
टू, हम्म 5,3, 7,4 और 9,5। बिल्कुल सही जवाब। सिर्फ कितने, 5 आ रहे हैं ना? हम्म। 2 3 आ रहा है। बताओ कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो आ रहा है 1,1, ठीक है। एक्स को 2 डाल के 3 3 कैसे आएगा, वाई बताना मुझे। एक्स को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 + 1। हाँ तो फिर दैट इज 3,2 ना, x, y होता है। एक्स को यू टेक 3, वाई आ रहा है 2, है ना। एक्स को फिर 5 लिया होगा, 5 लेके कितना आ रहा है, 6। हाँ ऑड वैल्यू होगी ना, एक्स की यू हैव टू टेक ऑड वैल्यूज, ऑड वैल्यू पे वाई इवन आ जाएगा। 5 लेके कितना आ रहा था, 9। 7 पे कितना आ रहा है, 4, एंड देन 9,5। दैट्स इट। इतना सिंपल सा सवाल मैंने भी कर दिया। हम लोग घबराते हैं अननेसेसरी। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिस्ट कर दिया, सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिस्ट कर दिया, जबकि यहाँ पे उसकी कहानी लिखी थी। दिस स्टोरी, व्हेन यू राइट स्टोरी अबाउट द सेट, सॉरी अबाउट द रिलेशन, इट्स कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को भी डिफाइन किया था, व्हेन यू राइट सम कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। Similarly, when you write some characterizing property of the relation, it is a set builder form. When you list the elements, कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। याद आ गया, बहुत सारे नाम है इसके। When you list all the ordered pairs, all the elements of the relation, it is called set builder form। और इसका एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। दिस इज क्लियर टू ऑल। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, इन एरो डायग्राम तुम्हें तीर चलाना होता है। कैसे, देखो, यू राइट सेट, मैं इधर लिख देता हूँ, यू राइट सेट ए, सेट बी इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स। यहाँ पे दोनों सेट सेम ही है ना, हियर द रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सो यहाँ भी ए लिखा जाएगा, यहाँ भी ए लिखा जाएगा। अदरवाइज द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यहाँ पे बी आता है। इस बी को को डोमेन भी कहा जाता है। If a relation is defined from set A to set B is called codomain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। चलो तीर चलाओ अब। 1 जब तुमने x को डाला तो y कहाँ, सिंपल, 1 1 से रिलेटेड है। 2 को जब तुमने x को 2 सब्स्टिट्यूट किया, y आया था कुछ, सॉरी, 3 गई, और 4 में कुछ नहीं आया, 5 में, 6 में कुछ नहीं आया, 7 में, 10 में, दैट्स इट। तो दिस इज एरो डायग्राम। इस एरो डायग्राम में जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको बोला जाएगा इमेज। जैसे 2 इज इमेज ऑफ 3, इसको कहा जाएगा प्री इमेज। 3 इज प्री इमेज ऑफ 2। सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग a रिलेशन बाय एरो डायग्राम। अब रुक जाते हैं, वापस को रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो। क्या हुआ विकास, समझ में नहीं आ रहा? बनाओ फिर, जल्दी लिखो, एरो डायग्राम बनाओ, पूरा पूरा लिखो सारा ये जो किया अभी तक। पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, उसके बाद वो लिखो, इसका अलग से रेस्टर बनाओगे ना। हम्म हाँ सेट तो तुम्हें वैसे मास्टर, तो टेस्ट होगा ना अभी।
अच्छा करना बहुत। वो लिख लिया अभी वाला। सो तुम्हें जो हमने पढ़ा है, ऐसा करूंगा एक क्लास में आई डू सम मोर एमसीक्यूज, है ना। वन क्लास आई डू एमसीक्यूज विद यू, उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। सो इट मे बी पॉसिबल दैट तुम्हें एरो डायग्राम दिया होगा, राइट सेट बिल्डर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म दिया होगा, दे राइट द अदर टू फॉर्म्स। यहाँ से ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एरो डायग्राम से ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जनरली पता लग जाता है। अभी असाइनमेंट में क्वेश्चन करेंगे हम। क्या? हाँ वो तो शॉर्टकट्स, बट ये शॉर्टकट्स में शॉर्ट सर्किट मत हो जाना। नहीं। तो जब भी कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड होगी, इसका मतलब वो ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, अदरवाइज दोनों सेट दिए होंगे। दिखाओ असाइनमेंट, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 47 ऑनवर्ड्स कर लो। एक और चीज बिफोर यू स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस, मैं एक चीज और डिफाइन करना चाह रहा हूँ। वन इज डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन लिखो। अरे, ऑल वैल्यूज ऑफ। हाँ लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। इट इज डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज। डोमेन इज, अद्विका नींद आ रही है तुम्हें? करो फिर लिखो। डोमेन इज ऑल सेट ऑफ फर्स्ट ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pair in the given relation। तो डोमेन क्या हुआ? इट इज a set of all first elements in the ordered pair of the given relation। और second definition लिखो। it is set of it is set of values of a it is set of elements of a it is the set of elements of a which have at least one image in set b, which have at least one image in set b। मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी कम से कम एक इमेज सेट बी में है। एक एलिमेंट की दो इमेज भी हो सकती है रिलेशन में, फंक्शन ऐसा नहीं होगा, बट एलिमेंट ऑफ सेट ए माइट हैव मोर देन वन इमेजेस ओवर देयर। तो बताओ इस सेट में डोमेन क्या होना चाहिए इस रिलेशन का? वन। वो एलिमेंट जिनका, हाँ, एटलीस्ट वन इमेज है। और यू कैन से 1 3 5 7 9, वो एलिमेंट सेट ए के जिनका बी में इमेज है। सिंपल एज दैट। ओके। 1 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का, 9 का है। देन लिखो रेंज ऑफ ए रिलेशन। व्हाट इज रेंज ऑफ रिलेशन? खुद डिफाइन कर सकते हो, या तो दो तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज सेट ऑफ ऑल इट इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स in the ordered pair of a relation। पहली definition, it is the set of all second elements it is the set of all second elements in the, क्या लिखवाया मैंने, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। और सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? इन सेट बी, हाँ, एटलीस्ट वन प्री इमेज। हाँ बिल्कुल सही। ये सेट बी है, ठीक है। वो तो बाई चांस बाई डिफॉल्ट ए था ये। those elements of set B which have at least one pre-image
वन थ्री फोर, 1 2 3 4 5 लिख लो. इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. सेट बी में आगे ब्रैकेट में कोडोमेन लिख लेना, बिकॉज सेट बी इज ऑल्सो कॉल्ड कोडोमेन. It is set of all those elements of the set B bracket में codomain which have at least one pre-image in set A. Now let's start with the question from कौन सा बताया था मैंने? 40. हाँ कर लो. 46. 47 onwards. हम्म. हम्म. नहीं नहीं, वो ट्रिपलेट और उसमें वो रिलेशन नहीं कहलाता. वो सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, वो रिलेशन में नहीं आएगा. रिलेशन में यू ऑलवेज हैव टू एलिमेंट्स. 47. या नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला यहाँ से करो. अरे ऑर्डर्ड पेयर तो बताया था अभी. ये तो 1000 बार वो मिसप्रिंट है शायद. दिस इज इक्वल टू दिस ना, तो x+1 इज इक्वल टू 3 एंड y-1 टू. बस किया तो था तुम लोगों ने. अरे इतना तो दिमाग लगा लो ना, बिल्कुल ऐसा मत करो. गर्मी ज्यादा है, मम्मी ने कहा घर पे रख के आना दिमाग है. ऐसा हुआ है क्या नंदिनी? कुछ नहीं. कव्य को तो बोला हुआ है. कुछ नहीं. ये तो हमेशा साथ में लेके चलती है, दिमाग ज्यादा ही लेके चलती है. ट्यूसडे को आ जाना जल्दी, है ना? क्योंकि इसका भी आ रहा है ना. हाँ तो तुम भी आ जाना, कर लेंगे एक ट्यूसडे को बिफोर द क्लास. तुम्हारा आ रहा है जीपी? सीक्वेंस आ रहा है अभी? सीक्वेंस सीरीज भी एक चैप्टर होता है मैथ्स में, ठीक है. तुमने एपी किया था. वही ट्रिको करेंगे अगली क्लास में, अलग असाइनमेंट. ट्रिको में भी काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज हम काफ़ी डिटेल में करेंगे. अभी कर रहे हैं, शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट. 2 क्लास के बाद कर लेंगे. तो फंक्शन में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को. क्या अभी तो टाइम है. हाँ कर लेंगे, मतलब देखो फंक्शन में जो डोमेन करना है, ग्राफ करने हैं कुछ, तो कुछ ग्राफ जो ट्रिगो के मैं ट्रिगो में करा दूंगा. सब हो जाएगा. हो जाएगा. अभी क्या टफ लग रहा है तुम्हें अभी? वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है. कोई बात नहीं, हम कम टाइम में अच्छा कर लेंगे. बस सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें अटेंटिव रहना है और जो पढ़ा है उसको घर पे जाके रिवाइज करना है. ये नहीं घर पे गए और फेंक दिया बैग और वापस. किसमें? सब हो जाएगा. डोंट वरी. डोंट वरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी करेंगे हम, बहुत सारे ग्राफ करेंगे. सिग्नम फंक्शन भी करेंगे. डोमेन रेंज भी करेंगे. थोड़ा डिटेल में करेंगे, हमें टाइम लग सकता है, 2 से ज़्यादा भी क्लास लग सकती है, वो तो मैंने ऐसे बता दिया. 6:30 हाँ 6:30. ट्रिगो के बाद तुम लोग डिसाइड करना कौन से करना है. अब वो तो इतना बेकार सा है, खुद ही कर लो. सीक्वेंस कर लो, उससे बेटर तो. ली तुम अलग से कर लेना ट्यूसडे आके. मैं तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम करा दूंगा अलग से. चलो जल्दी करो, नेक्स्ट आज जल्दी बढ़ो आगे. बैठ गई ना तुम? क्या बात कर रहे हो? सेट्स नहीं है, क्रॉस कार्डियन प्रोडक्ट का है ये. हम्म. हाँ उसमें ब्रैकेट उल्टा लगा हुआ है ना. हाँ तो वैसे एज अ रूल व्हाट विल डू इज दैट एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू स्टडी, यू स्टडी ऑन ट्यूसडेज. 3:30 to 5 भी आ सकता हूँ मैं तो, और जल्दी आ सकता हूँ. 1 घंटा तो बहुत होता है वैसे. 3 to 5 4 to 5 पढ़ सकते हो.
और इस क्लास में नॉर्मल पेस पे चलूंगा मैं, ठीक है, डिटेल में, बिकॉज आई टेक टाइम। एक्स्ट्रा थिंग यू ट्यूसडे को पहले से आके कर लो। ग्रुप में डाल देना कौन पहले आना चाह रहा है। क्या हुआ? इंटरसेक्शन में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यूनियन में सारे ऐड होते हैं, तुम्हें मालूम है ना, तो दो सेट का यूनियन लेते हैं, क्या करते हैं? इनटू मत बोलो, क्रॉस। हाँ। बी बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ बी और सी में जो कॉमन है वो पहले लिख लो क्या आ रहे हैं। उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए, क्रॉस whatever, हाँ। देन यू राइट द ऑर्डर्ड पेयर, सिंपल सी बात। हो गया सृष्टि वाला। 49 कर दो, बोर्ड पे कर दो 49। हाँ, ठीक है। यू हैव टू बी टॉपर ऑफ रेस्पेक्टिव क्लासेस, ठीक है। यू हैव टू बी रेस्पेक्टिव क्लासेस का टॉपर रहना है, तुम्हें बने रहना है। 11th में नॉर्मली बहुत वो हो जाता है उलटफेर। काव्या, यू हैव टू बी नंबर वन इन द क्लास। हाँ, यहाँ तो हमारा बहुत डिटेल में होगा, ये तो हो ही रहा है। बिकॉज आई डोंट वांट कि दैट यू डोंट डू वेल देयर इन स्कूल एग्जाम ऑल्सो। तो हमने नॉर्मल क्लास में नॉर्मल उस पे चलेंगे, पेस पे। एनीथिंग एक्स्ट्रा, दिव्या तुम्हें कुछ पूछना है तुम फोन पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सॉलिड हो जाएगा तुम्हारा मैथ्स में। योर टारगेट शुड बी 100 on 100। द गर्ल हु गॉट 12th रैंक ना बैंगलोर का, शी गॉट बोर्ड में 99%, एंड हर मार्क्स इन मैथ्स वाज 92 इन जेई पेपर 2। हम्म या दैट्स आउट ऑफ 100, 92 मैथ्स में जेई में लाना तो टू मच, टू गुड। कलर चेंज कर लो, इसको लिफ्ट पर भी शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ब्लैक से लिख लो। तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना है, कितना पढ़ना है, कितनी मस्ती करनी है, बस। मतलब ये नहीं है कि हमेशा पढ़ते रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं, बट प्रायोरिटीज फिक्स कर लो अपने। 12 आ रहा है ना इसमें, एक एक क्रॉस बी यूनियन सी में। 12 ही है। मेरे को बी यूनियन सी इसमें आ रहे हैं 6 नहीं 4, 4 into 3 12, ठीक है। कैन यू फिगर आउट सम रिलेशन बिटवीन 1 2 3 4, चारों पार्ट में देखो कुछ रिलेशन आ रहा है? किसमें इंटरसेक्शन? विच पार्ट? पार्ट 2 में यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कहाँ ले रहे हो? ढंग से देखो, इट्स यू।
अच्छा हाँ। हम्म। 1 4 आ रहा है देखो एक। 1 4, 2 4। देखो ऑड नंबर नहीं हो सकता हमेशा, तीन होंगे या चार होंगे यार। चार होने चाहिए, तीन। एक और है ना। नहीं, ये तीन ही है। हाँ, जो वो इवन में तो उसमें आते हैं ना। अच्छा, उसमें भी नहीं आते, उसमें ऑड हो जाता है, ठीक है। 1 4 और एक और आ रहा है शायद ना। 3 4। 3 4 देखो लास्ट। ठीक है। कुछ पता लगा जो बोल रहा था? कुछ प्रॉपर्टी पता लग रही है इस क्वेश्चन में, देखो। जिस था ए क्रॉस बी यूनियन सी था ना ये। तो दिस व्हेन यू ओपन, हाँ, तो व्हेन यू ओपन दिस, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये दोनों सेम आ रहे हैं तुम्हारे। सिमिलरली यहाँ देखो जरा। एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इफ यू नोटिस हियर। अच्छा, सेकंड पार्ट कर लिया तुमने, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है ना। फर्स्ट एंड सेकंड का दिशा देखो, फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्ट सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ए क्रॉस के क्रॉस तुम लिखो अपना बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी, ये हो गया। एंड देन इंटरसेक्शन A cross C. So you can say that Cartesian product of sets is distributive over union and intersection. थर्ड पार्ट में देखो दोनों सेम आ रहे होंगे, तुमने नहीं किया, फिर तुम बैठ जाती बीच बीच में। थर्ड एंड फोर्थ सेम आएगा। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ भी सेम आएगा, बिकॉज थर्ड में यूनियन पे हो रहा है वो। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन। यूनियन 2 3 4 5 6। 3 4 5 6। नेक्स्ट करो काव्या, बैठना नहीं है। तो अब तक फंक्शन शुरू हो गया है वहाँ। तुम्हारी क्लास कैंसिल हो गई था इस चक्कर में शायद। हमारी क्लास कैंसिल हो गई थी ना बीच में, ट्यूसडे को। हम्म। अदरवाइज दोनों पैरेलल चल रहे थे। ए क्रॉस बी यूनियन सी में 12 आ रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट करो नंदिनी। हो गया। अच्छा, ये वाला नहीं किया तुमने। हम्म। एक मिनट, एक। हाँ। 51 is R is a set of real numbers. What do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R, हमने किया हुआ है क्वेश्चन क्लास में। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। सोचो। निकाल नहीं सकते हो तुम इसको। आर आर रियल। आर इज बेसिकली ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू क्लोजेस्ट रियल नंबर और इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो पूरा प्लेन बन जाएगा ना। आर क्रॉस आर बेसिकली रिप्रेजेंट अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिकॉज मैंने बताया था ना, लेटेस्ट बना के नेचुरल नंबर में 1 1 1 2 1 3 ऐसे आएगा। रियल नंबर में पूरा फिल हो जाएगा, मतलब इट्स एंटायर वे थ्री डायमेंशनल। हाँ।
So R cross R, when R is a set of real numbers, would represent two-dimensional coordinate system, 2D XY coordinates, whereas R cross R would represent a three-dimensional coordinate system. लिख लेना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. राइट, तो ये दोनों देखो सेम आ रहा है ना. तो सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Cartesian product of sets is also distributive over union of sets. This is a property. If you knew this property, there was no need of doing it again and again. लिख लेना ये. ट्रिपलेट में नो, इल बी ए इंटू बी इंटू सी काइंड. अगर ए क्रॉस ए निकाल रहे हो, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए. अगर एन, नहीं तो जरूरी नहीं है ना. अगर तुम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो सपोज, हाँ तो हाँ तो स्क्वायर हो गया. अगर ए क्रॉस सी निकाल रहे हो, ये बेसिक रूल है. तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, सिंपल एज दैट. मतलब उनके इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं. हाँ, 3 बार मल्टीप्लाई, टू इंटू टू, टू क्यूब हो गया. क्यूब हो जाएगा फिर. करते जाओ, रुकना मनाए. ऐसा रिलेशन ही चल रहा है ना. 58 का तुम रिजल्ट ऑलरेडी कर चुके हो, अभी किया था ना ये वाला, देखो. 50. हाँ, पूछ लेना नंदिनी. 58 में बी इंटरसेक्शन सी फाई आ रहा है. फाइंड ए एंड बी. ए बताना, बी बता. हाँ, हो सकता है, ठीक है. अगर तुम्हारा कोई नल सेट होगा ना, तो फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी नल सेट आता है. और तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट वी क्यू हो जाए, बी हो जाएगा. The first set will be the set of all first elements. Second set B will be set of all second elements. नो, अरे ये तो अंधा ही बता देगा. अगर मैं 3 6 लिखा तो पहले कौन सा लिखा है मैंने? 3. इफ यू हैव ऑर्डर्ड पेयर 1,5, पहला एलिमेंट कौन सा है? नो, बताओ ना, इसमें बताओ. हाँ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सब में जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड हो जाएगा.
तो ए हो जाएगा ए, ए बी बी, तो रिपीटिशन तो कोई मेरी ए एंड बी हो गया बस। हाँ, क्लियर हो गया। क्यू है ना, पी हो गया एम एन, क्यू हो गया एन एम, सेम ही तो हो गया। देखो अगर दो सेट्स हैं तो पी एम एन हो गया ना, तो क्यू भी तो एन एम वही हो गया। बट हमें क्यू नहीं दे रखा था ना इसमें। हाँ, क्यू नहीं दिया हुआ है ना, मिसप्रिंट है इसमें कुछ। हम्म। हाँ, तो सही होता ही है। तो पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, दूसरा सेकंड को करता है। हम्म। दीक्षा कौन सा कर रही हो? 59 क्यू। ओ, नंदिनी तुम कहाँ पहुंची? ऑलराइट। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तुम्हारे, तुमने घर पे किए फिर वो? लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन तुम्हारे रह गए थे ना शायद? नहीं, अद्विका के रह गए होंगे या तो। अच्छा, हाँ 46 तक। 58 तो वही प्रॉपर्टी है ना? So when you find Cartesian product of any set with a null set, it will be always null set. If you have any set and you find Cartesian product with phi, it is always phi. जैसे तुम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो आता है, दैट टाइप्स। उसमें कुछ मिसप्रिंट है, उसमें ना क्यू गिवन नहीं है, छोड़ दो। कॉमन निकालना है। जो डोमेन में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज नहीं होती, क्या हम उन्हें क्या, कुछ क्या बात उल्टा बोल रही हो तुम? डोमेन में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इमेज होता है। अगर जो पहला सेट है, सपोज सेट ए है, हाँ। और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी कोई इमेज नहीं है, हाँ, वो डोमेन का पार्ट नहीं है। उन्हें कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, उनको बोलते हैं सैड। सैड है। They are not part of the domain. We feel bad about them. So they're not part of the domain, though they are part of the set. But function में ये rectify हो जाएगा। function में set A, the entire set A would be domain. Relation में ऐसा नहीं होता है। Relation में there will be some elements left out in set A, which are not part of the domain. इसको छोड़ो, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट करो। नॉन एंटी मतलब जिसमें जो फाइन ना हो, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। बिल्कुल सही कहा। एक क्रॉस बी में अगर चार एलिमेंट है तो रिलेशन उसके 16 बनेगी। एक नल रिलेशन बनेगी, एक यूनिवर्सल बनेगी, और बीच में बहुत सारी रिमेनिंग 14 हो जाएंगे।
किसमें? लिख लो ना, लेस देम कर दो, क्या हुआ? तुम्हें तो 100 नहीं चाहिए क्या? अरे, क्या बात कर रही हो? तुम तो कर लेती हो जल्दी से। तो अगली बार मैं नोटबुक लेके आना, वो वाली, ठीक है, नई वाली। ठीक है, हाँ। तुम कौन सी हो ये? अद्विका? इट्स यू? इधर देखो, ये। हम्म, देखो, अगर हम सेट इनटू सेट में है ना ये, एक से तुम 1 लोगे तो y2 आ गया, वो हो गया। 6 7 नहीं आ सकते, बिकॉज 7 इज नॉट पार्ट ऑफ ए। y and x both should be part of the set A। हमने किया था ना एग्जाम्पल, वैसा सही है वो। आगे बढ़ो नंदिनी, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। जिनका इमेज है ना, will be the entire set A would be the codomain, है ना? And the range would be these, ये वाले जिनका प्री इमेज है। किस वाले में? हाँ, राइट। दिस फॉर्म सेट। कोडोमेन तो पूरा सेट हो जाएगा, है ना ये? अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी होगी ना? हाँ। देखो, इस वाले में तो मैं दे रखा है एरो डायग्राम, एंड यू नीड टू फाइंड द सेट। ये तो इजी है, वैसे कर लोगे। बट सेकंड पार्ट वो भी है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना है। हाँ। रोस्टर फॉर्म में तो वही लिस्टिंग ऑर्डर्ड पेयर बना के। हाँ। घर पे कर लेना, अभी इसको आगे बढ़ जाओ फिर। घर पे कर लोगे ना, जगह छोड़ दो इस क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पक्का कर लेना लेकिन। हाँ। क्या हुआ देवशा? थक गई? नहीं। ये क्या लिखा है? अरे, और ये क्या लिखा है फिर ये? कैसे लिख रही हो तुम भी ना, अरबी में? अच्छी है, तुम जल्दबाजी कर रही हो, तुम रिलैक्स मोड में हो, भी हॉलीडे मोड में। छुट्टियां चल रही हैं फिर भी क्लास में आना पड़ रहा है, हाँ? छुट्टियां हो गई फिर भी पढ़ना पड़ रहा है? नहीं हुई? कब है? अच्छा। लोटस वैली में हो तुम?
दिशा को जानती होंगी ना, डिजाइन में होती है। आर्या जैन को जानती थी तुम? आर्या जैन, वो लास्ट ईयर आता था पढ़ने फिजिक्स। कौन सा हो रहा है? ओके। काव्या, कहाँ पहुंची तुम? सेट बिल्ड फॉर्म क्या लिखा है इसका बताना मुझे। कहाँ लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म? एक्स इज इक्वल टू वाई। हाँ तो रूट एक्स का करोगे, गलत हो गया ना ये। एक्स को तुम डालोगे 9, दिखाओ तो क्या आएगा। नहीं, क्या बात कर रही हो? रूट 9, रूट 9 इज हाउ मच? नो, इट्स 3 ओनली। आई टेल यू व्हाई। बोर्ड पे बताता हूँ, सबके लिए जरूरी है ये। देखो एक चीज बहुत जरूरी है, वो हमें समझना है कि इफ यू हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, then if you take the root, it would be x is equal to plus minus root 9. That would mean +9. That would mean negative root 9. Positive root 9 will be always 3, never -3. And it would be -3. कहने का मतलब ये हुआ, mod under root of x square कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. It will be always a positive number. So when I say root 9 would be strictly +3. Minus root 9 will be strictly -3. ये होता है। इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन ये है, बिकॉज व्हेन यू फैक्टराइज बाय ब्रिंगिंग इन द लेफ्ट साइड, यू गेट टू वैल्यूज। लेकिन रूट ऑफ समथिंग वो हमेशा मॉड होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो उसका सेट बिल्डर फॉर्म तुम लिख रहे हो ना, तो क्या लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म? एक्स इज इक्वल टू आई थिंक वाई स्क्वायर। ये सही है। सो व्हेन यू राइट एक्स इक्वल टू 9, देन वाई की वैल्यू +-3 आ गई। ऐसे कुछ था ना, वाई दो वैल्यूज है ना? नहीं, सेम नहीं है, दिस इज, ये कौन सी? हाँ ये तो सही है ना, +-3 आ रहा है। लेकिन इफ आई, इसके, हाँ अब बताता हूँ मैं। इसके दो आंसर हैं। इसका एक आंसर है रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, दूसरा आंसर है -√x इज इक्वल टू वाई। बट इफ समबडी सेज रूट एक्स इक्वल टू वाई, उससे ये आंसर नहीं आएगा। इसको स्क्वायर करने पे ही आ रहा है ना। देखो, इफ आई टेक दिस पार्ट इट गिव्स मी ओनली वन आंसर, एक्स इज इक्वल टू 3। If I take this part, it is only one answer, x equal to -3. So similarly, when I say root 9 हमेशा +3 होगा because of this. But when you say x square equal to 9, x की दो वैल्यूज है, प्लस माइनस रूट 9, +√9, +√9 का आंसर क्या हो बताओ मुझे। इट वॉन्ट बी -3, -3 ये वाला है। प्लस माइनस, हाँ दो सही हो जाएगा फिर। पर ये याद कर लो, ठीक है, काम आएगा बहुत ये। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। ठीक है, कहाँ तक कर लिए हमने क्वेश्चंस? 61 था। I 64। think you are in position to answer till 76 तक कर लोगे सारे? ठीक है, कोई बात नहीं, 75 तक कर लो सीख। ठीक है, मतलब फ्राइडे क्लास में तुम्हें 75 तक करके आना है। फ्राइडे, सॉरी सैटरडे। हाँ, सैटरडे हमारी थोड़ा जल्दी होती, 4:45 होती क्लास। एंडिंग द क्लास दिव्शा, थैंक 75 तक कर लेना, ठीक है। यू।